Weapons. Myself Vipin Pitkar and you are watching the channel Learn with Vipin. So I hope you like this video, subscribe this channel and share it. Okay, so we are going on our chapter 4 from the class 7th NCERT textbook Heat. Okay, so I hope you all understood clinical thermometer very well. We have learned about it in the last part, and if anyone arises any type of doubt, you can comment in the comment box. I will clear it in the next part of this chapter. So now let's get started. Now our topic is laboratory thermometer. We are going to start here. Our topic is laboratory thermometer. Okay, now let's get started. Now we have learned about the clinical thermometer in the last part, and now we are going to start the laboratory thermometer. We use clinical thermometer for measuring the temperature of a body, human body. Okay, now let's get started. Our topic is laboratory thermometer. How do we measure the temperature of other objects? For this purpose, there are other thermometers. One such thermometer is known as the laboratory thermometer. देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, हाउ डू वी मेजर द टेम्परेचर ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स. अब हम दूसरे ऑब्जेक्ट्स का जो टेम्परेचर है कैसे मेज़र करें, दूसरे ऑब्जेक्ट्स का टेम्परेचर अब हम कैसे मेज़र करें. फॉर दिस पर्पस देयर आर अदर थर्मोमीटर्स. इस काम के लिए, इस पर्पस के लिए दूसरे थर्मोमीटर हैं हमारे पास. वन सच थर्मोमीटर इज नोन एज द लेबोरेटरी थर्मोमीटर. इसी प्रकार के एक थर्मोमीटर को हम लोग कहते हैं लेबोरेटरी थर्मोमीटर. लेबोरेटरी thermometer. The teacher will show you this thermometer. इस ये जो thermometer है laboratory thermometer, you can see here the green line. This is the laboratory thermometer. Okay, you can see in your book or this video too. Okay, so ये thermometer आपको आपके teachers दिखाएंगी. Now firstly read this box. We will read this box. Okay, what is saying here that different types of thermometers are used for different purposes. The maximum and minimum temperatures of the previous day reported in weather reports are measured by a thermometer called the maximum minimum thermometer. What is saying here that कि अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के थर्मोमीटर्स जो हैं डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ किए जाते हैं. डिफरेंट टाइप्स, अलग अलग प्रकार के थर्मोमीटर्स अलग अलग काम के लिए यूज़ किए जाते हैं. द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर्स ऑफ द प्रीवियस डे रिपोर्टेड इन वेदर रिपोर्ट्स आर मेजर्ड बाय अ थर्मोमीटर कॉल्ड मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर. जो मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर होता है कल का, और वेदर रिपोर्ट में जो भी रिपोर्ट्स आती हैं वेदर की, वो जो है इसी एक थर्मोमीटर से मेज़र किया जाता है जिसे हम मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर कहते हैं. मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर्स द thermometer by which we measure the temperatures of the previous day reported and weather reports are measured by this thermometer. Okay, to measure the weathers we use the maximum minimum thermometer. Okay, now move to the next topic. Look at it carefully and note the highest and the lowest it can measure. Okay, अब आपको जो है ध्यान से देखना है और उसके बाद फिर उसका हाईएस्ट पॉइंट एंड लोएस्ट टेम्परेचर जो है इसका देखना है जो कि मेज़र कर सकते हैं. अब आपको उसके ध्यान से देख के हाईएस्ट एंड लोएस्ट टेम्परेचर देखना है जिसे हम मेज़र कर सकते हैं. द रेंज ऑफ अ लैबोरेटरी थर्मोमीटर इज जनरली फ्रॉम -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस. जो रेंज है लेबोरेटरी थर्मोमीटर की, जो जनरली रेंज है जिसमें हम टेम्परेचर मेज़र कर सकते हैं, वो -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस. जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर को मेज़र करने की जो रेंज है लेबोरेटरी थर्मोमीटर की जो नॉर्मल रेंज है मेज़र करने के लिए, टेम्परेचर मेज़र करने के लिए जो नॉर्मल रेंज है वो -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस है. Also, as you did in the case of the clinical thermometer, find out how much a small division on this thermometer reads. जैसे कि आप लोगों ने देखी क्लिनिकल थर्मोमीटर में हम लोगों ने डिवीज़न पढ़ा था, डिवीज़न पढ़े थे ना हम लोगों ने. फ़ारेनहाइट स्केल के भी पढ़े थे, सेल्सियस स्केल के भी पढ़े थे हमने क्लिनिकल थर्मोमीटर में. उसके बीच में डिविजन्स पढ़े थे, और उसी प्रकार से हमें इस लेबोरेटरी थर्मोमीटर में भी रीड करने हैं. वही डिविजन्स इसमें भी हमें रीड करने सेम तरीके से. ओके,
You would need this information to read the thermometer correctly. आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन जो है आपको थर्मोमीटर अच्छे से पढ़ने के लिए, आपका टेम्परेचर मेज़र करने के लिए लेबोरेटरी थर्मोमीटर तो हम लोग दूसरे ऑब्जेक्ट्स को मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं। तो वही जैसे क्लिनिकल थर्मोमीटर में हम लोगों ने डिवीज़न पर देखे थे, डिवीज़न रीड किए थे, उसी तरह हम लेबोरेटरी थर्मोमीटर में भी देखेंगे। वो हमें थर्मोमीटर रीड करने में मदद करते हैं। Now let us now learn how this thermometer use. अब चलिए हम देखते हैं कि इस थर्मोमीटर को हम किस प्रकार यूज़ कर सकते हैं। Now there is an activity 4.4. Let's read it. Take some tap water in a beaker or a mug. अब आपको थोड़ा सा टैप वाटर लेना है बीकर में या फिर मग में, या आपको बीकर में लेना है या आपको मग में लेना है। आपको इन दोनों में से किसी एक में आपको थोड़ा सा टैप वाटर लेना है। Dip the thermometer in water so that the bulb is immersed in water but does not touch the bottom or the sides of the container. What is saying here that कि जो थर्मोमीटर है उसके बाद हम लोगों ने पहले क्या करना है, हमें टैप वाटर लेना है, बीकर या फिर मग लेना है, उसमें हमें टैप वाटर डालना है, टैप वाटर फिल करना है थोड़ा सा, उसके बाद पूरा नहीं थोड़ा सा फिल करना है। उसके बाद फिर हम उसमें थर्मोमीटर को डिप करेंगे और ये आपको रिमाइंड रखना है कि वो बॉटम को ना टच करे और कंटेनर की साइड्स को ना टच करे। वी हैव टू नो दैट कि वो जो थर्मोमीटर है वो बॉटम और साइड्स ऑफ द कंटेनर को टच ना करे। बल्ब जो है वो पानी के अंदर होना चाहिए। ओके, नाउ होल्ड द थर्मोमीटर वर्टिकली। अब आपको थर्मोमीटर को वर्टिकली होल्ड करके रखना है, जैसे कि 4.5 फिगर में शो किया हुआ है। ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ मर्करी इन द थर्मोमीटर। अब आपको जो है हियर शी सोन द फिगर 4.5 इज देयर। देखिए आप लोगों को दिखाया गया बीकर में उन्होंने पानी लिया है, और जो बल्ब है नीचे वाला बल्ब, देयर इज एन बल्ब ना, जो क्लिनिकल थर्मोमीटर में शो किया था सेम हियर, तो वो उन्होंने डिप किया हुआ है। आपको भी सेम इसी तरीके से करना है, बट you don't have to touch the bulb of thermometer at the bottom of the container or at the sides of the container. Okay, wait till the mercury thread becomes steady. अब आपको तब तक वेट करना है जब तक जो है मरकरी का जो थ्रेड है वो स्टीडी ना हो जाए, स्टीड ना हो जाए। ओके, आपको मरकरी का मूवमेंट भी ऑब्जर्व करना है। You have to observe the mercury movement of the thermometer and after then wait till the mercury thread becomes steady, जब तक वो रुक ना जाए। And note the reading. This is the temperature of water at that time. अब आपको जो है रीडिंग उसकी नोट करनी, जो भी वाटर का टेम्परेचर आया वो नोट करना है, उसी टाइम पे नोट करना है। वो टेम्परेचर वो वाटर का उस टाइम पे टेम्परेचर होगा, वाटर का जो टेम्परेचर है उस टाइम में वो होगा उसमें। कंपेयर द टेम्परेचर ऑफ वाटर रिकॉर्डेड बाय ईच स्टूडेंट इन द क्लास। उसके बाद ये जो वाटर का जो टेम्परेचर हर एक स्टूडेंट क्लास में हर एक स्टूडेंट से मेज़र करना है, जो उन्होंने रिकॉर्ड किया है वो अब आप सबको अपना मेज़र करना है, एक साथ में करना है। ओके, Buju now understand why clinical thermometer cannot be used to measure high temperatures, but still wonders whether a laboratory thermometers can be used to measure his body temperature. अब देखिए बूजो क्या कह रहे हैं। बूजो जो है अब वो समझ चुका है कि क्लिनिकल थर्मोमीटर जो है हाई टेम्परेचर्स को मेज़र करने के लिए यूज़ नहीं हो सकते। हम जो है क्लिनिकल थर्मोमीटर को हाई टेम्परेचर्स को मेज़र करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते, बट वो फिर भी वंडर करता है कि वेदर एक लेबोरेटरी थर्मोमीटर जो है वो बॉडी टेम्परेचर भी मेज़र कर सकता है। नाउ लेट्स सी। In addition, there is a blue books too. We will read it. In addition to the precautions needed while reading a clinical thermometer, the laboratory thermometer. अब इसके हमें जब पढ़ रहे होते हैं, क्लिनिकल थर्मोमीटर पढ़ रहे होते हैं या फिर लेबोरेटरी थर्मोमीटर हम पढ़ रहे होते हैं, तो हमें कुछ प्रिकॉशंस चाहिए होते हैं। फर्स्ट इज शुड बी केप्ट अपराइट टू नॉट टिल्टेड। ये एकदम अच्छे से रखा होना चाहिए, टिल्ट नहीं होना चाहिए। एज शोन इन फिगर 4.5 यू हैव सीन दैट देयर। इस तरीके से वो एकदम अच्छा अपराइट होना चाहिए, वो टिल्ट नहीं होना चाहिए।
Bulb should be surrounded from all sides by the substance of which the temperature is to be measured. जो बल्ब है वो उन सभी साइड से सराउंडेड होना चाहिए, जिसका हम टेम्परेचर मेज़र कर रहे हैं उससे वो सभी साइड से सराउंडेड होना चाहिए. द बल्ब शुड नॉट टच द सरफेस ऑफ द कंटेनर. बल्ब जो है वो कंटेनर की सरफेस को टच ना कर रहा हो या फिर कंटेनर की साइड्स को टच ना कर रहा हो. यू हैव टू रिमाइंड इन योर माइंड, यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड दैट द बल्ब शुड नॉट बी touched by the bottom of the container or at the sides of the container. Now, are any variations in the readings? Discuss the possible reasons. Let us try to answer these questions. अब क्या जो आपके फ्रेंड्स ने, आपके क्लासमेट्स ने जो वाटर का टेम्परेचर लेबोरेटरी थर्मोमीटर से मेज़र किया और आपने क्या किया, क्या उसमें कुछ वेरिएशंस, कुछ डिफरेंसेस थे? चलिए इसी रीज़न का, इसी जो है इसका पॉसिबल रीजंस डिस्कस करते हैं और इस प्रॉब्लम का हम आंसर देते हैं इस क्वेश्चन का. नाउ देयर इज़ वन मोर एक्टिविटी 4.5. Take some hot water in a beaker or a mug. You have to take some hot water. कुछ hot water लेना है, या तो आप बीकर में ले लीजिए या आप मग में ले लीजिए. अब आपको hot water लेना है. पहली एक्टिविटी में हम लोगों ने tap water लिया था. Now you have to take hot water. Dip the thermometer in water. Now you have to dip the thermometer in the water as usual as the last activity. उसी तरीके से जैसे कि हम लोगों ने लास्ट एक्टिविटी में हम लोगों ने जैसे उसमें थर्मोमीटर डिप किया था, उसी तरीके से इसमें भी आपको थर्मोमीटर डिप करना है. Becomes steady and note the temperature. अब आपको तब तक वेट करना जब तक मरकरी का जो थ्रेड है वो स्टीडी रुक ना जाए और उसके बाद फिर आपको टेम्परेचर नोट करना है. नाउ टेक आउट द थर्मोमीटर फ्रॉम वाटर. उसके बाद फिर जो है थर्मोमीटर को आप वाटर से बाहर निकालिए. टेक आउट द थर्मोमीटर फ्रॉम द वाटर. ऑब्जर्व केयरफुली व्हाट हैपन्स नाउ. और इसको ध्यान से ऑब्जर्व करिए अब क्या हुआ है. डू यू नोटिस दैट एज सून एज यू टेक द थर्मोमीटर आउट ऑफ वाटर, क्या आप लोगों ने नोटिस किया जैसे जैसे आप लोगों ने जो वाटर से जैसे आपने थर्मोमीटर को बाहर निकाला, द लेवल ऑफ मर्करी बिगिंस टू फॉल. जो मरकरी का लेवल था वो गिरने लगा, वो कम होने लगा. जैसे कि हमने कंटेनर लिया, कंटेनर में अपना जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है वो डिप किया, अपना थर्मोमीटर डिप किया. कंटेनर में वाटर डालना है पहले आपको, हॉट वाटर. इस एक्टिविटी में आपको हॉट वाटर लेना है, कंटेनर में हॉट वाटर लेना है. उसके बाद थोड़ा हॉट वाटर लेना है, ज़्यादा पानी नहीं लेना है, हमें थोड़ा लेना है. उसके बाद फिर उसमें हम लोग थर्मोमीटर को डिप करेंगे. आफ्टर डिपिंग द थर्मोमीटर, अब देखिएगा जब तक मरकरी थ्रेड स्टीडी मीन्स कि मरकरी रुक ना जाए तब तक आपको वेट करना है. और जब मरकरी रुक जाता है उसके बाद आपको रीडिंग करनी है, आपको टेम्परेचर देखना है. आफ्टर सीइंग द टेम्परेचर, उसके बाद फिर जो थर्मोमीटर को निकालिए और फिर देखिए जैसे जैसे आप थर्मोमीटर को निकालते हैं वैसे वैसे मरकरी जो है गिरती जाती है, वो टेम्परेचर कम होता जाता है. दिस मीन्स दैट द टेम्परेचर मस्ट बी रीड व्हाइल थर्मोमीटर इज इन वाटर. इसका मतलब ये है टेम्परेचर जो हम तभी रीड कर सकते थे जब तक थर्मोमीटर जो पानी में था. जब तक थर्मोमीटर पानी में था हम तभी तक रीडिंग कर सकते थे. यू मे रिकॉल दैट वाइल टेकिंग योर ओन टेम्परेचर. आपको ये भी याद होगा कि जब हम अपना टेम्परेचर लेते हैं, यू हैव टू टेक दिस थर्मोमीटर आउट ऑफ योर माउथ टू नोट द रीडिंग. जब आप अपना टेम्परेचर मेज़र करते हैं, वाइल यू टेक योर टेम्परेचर मेज़र, तो आप लोगों को जो थर्मोमीटर जो है अपने माउथ से बाहर निकालना पड़ता है रीडिंग करने के लिए. यस करेक्ट. जब आप अपना टेम्परेचर मेज़र करते हो तो आपको जो है थर्मोमीटर बाहर निकाल के अपनी रीडिंग देनी पड़ती है कि कितना है, तो उसे बट लेबोरेटरी थर्मोमीटर में तो हमें उसी में देखने पड़ते हैं, नहीं तो वो तो हम निकालते हैं बाहर तो मरकरी तो गिर जाती है. कैन यू देन यूज़ द लेबोरेटरी थर्मोमीटर टू मेज़र योर टेम्परेचर. क्या फिर अब आप जो है अपना टेम्परेचर मेज़र करने के लिए, अपना बॉडी टेम्परेचर मेज़र करने के लिए क्या आप लेबोरेटरी थर्मोमीटर यूज़ कर सकते हो? Obviously, it is not convenient to use the laboratory thermometer for this purpose. हाँ, obviously ये हम लोग जो है मीन्स कि लेबोरेटरी थर्मोमीटर को अपना बॉडी टेम्परेचर मेज़र करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं. Why does the mercury not fall or rise in a clinical thermometer when take out of the mouth? क्यों मरकरी जो है क्लिनिकल थर्मोमीटर की मरकरी जो है वो या तो गिरती नहीं है या बढ़ती नहीं है जब हम अपने माउथ से बाहर निकालते हैं थर्मोमीटर को. क्लिनिकल थर्मोमीटर को जब बाहर निकालते हैं ना तो उसकी मरकरी गिरती है ना उसकी मरकरी बढ़ती है.
ना उसका टेम्परेचर बढ़ता है ना उसका टेम्परेचर गिरता है। बट लेबोरेटरी थर्मामीटर में हमें जब हम मेज़र कर रहे हो, जब हमारा मरकरी थ्रेड रुक जाए तभी हमको मेज़र करना, अपना रीडिंग लेनी पड़ती है, नहीं तो वो हम जैसे बाहर निकालते हैं तो हमारा मरकरी थ्रेड की जो मरकरी थ्रेड जो है वो गिरने लग जाता है, मरकरी गिरने लग जाती है। बट इन द क्लिनिकल थर्मामीटर इट इज़ नॉट। क्लिनिकल थर्मामीटर बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए बनी है, और हम जब अपने माउथ में लगाते हैं तो जब वो हो जाता है तो उसके बाद हमें रीडिंग करने के लिए उसे बाहर ही निकालना पड़ता है। ऑब्जर्व अ क्लिनिकल थर्मामीटर अगेन। फिर अब आप क्लिनिकल थर्मामीटर को अगेन देखें, दोबारा से देखें, 4.6 में दिया हुआ है। डू यू सी अ किंक नियर द बल्ब? क्या आपने किंक देखा जो बल्ब के पास में? दिस इज द किंक, गांठ। क्या आपने देखी है? व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस किंक? अब इस किंक का क्या यूज़ है? इस किंक का यूज़ क्या है? इट प्रिवेंट्स मर्करी लेवल फ्रॉम फॉलिंग ऑन इट्स ओन। ये जो है किंक का यूज़ क्या है? ये जो है जो लेवल होता है, मर्करी का जो लेवल होता है वो गिरने से, वो खुद गिरने से, जैसे लेबोरेटरी थर्मामीटर में मर्करी लेवल खुद गिरता है ना, उसी तरीके से ये जो है मर्करी लेवल गिरने से बचाती है। किंक जो है मर्करी लेवल गिरने से बचाती है। There is a lot of concern over the use of a mercury in thermometers. यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा जो है कंसर्न किया जा रहा है जो मर्करी थर्मोमीटर में यूज़ की जाती है उसके बारे में। मर्करी इज़ अ टॉक्सिक सब्सटेंस। मर्करी जो है एक जहरीला पदार्थ है, जहरीला सब्सटेंस है, एंड इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डिस्पोज ऑफ, और इसे जो है डिस्पोज करना भी बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही डिफ़िकल्ट है। डिस्पोज ऑफ इफ़ अ थर्मोमीटर ब्रेक्स। अगर थर्मोमीटर टूट जाता है तो इसे डिस्पोज करना भी बहुत ही मुश्किल है। These days digital thermometers are available which do not use mercury. इन दोनों जो है डिजिटल थर्मोमीटर का हम यूज़ करते हैं, डिजिटल थर्मोमीटर का हम घरों पे यूज़ करते हैं टेम्परेचर मेजर करने के लिए, जिनमें जो है मर्करी का यूज़ नहीं होता, जिनमें मर्करी अवेलेबल नहीं होती है। बट जो हाँ दूसरे थर्मोमीटर्स होते हैं, नॉर्मल थर्मोमीटर्स, जैसे कि आपको ऊपर क्लिनिकल थर्मोमीटर दिखाया गया है, इसमें जो है मर्करी यूज़ होती है। लैबोरेटरी थर्मोमीटर में भी मर्करी होती है, और जो क्लिनिकल थर्मोमीटर में है मर्करी का लेवल गिरने से कौन बचाता है? किंक बचाता है। ये किंक अवेलेबल होता है क्लिनिकल थर्मोमीटर में, जो कि मर्करी का लेवल अपने आप गिरने नहीं देती है। बट लेबोरेटरी का थर्मोमीटर हम जब मेज़र कर रहे होते हैं टेम्परेचर, हमें उसी वक्त रीडिंग लेनी पड़ती है। अगर जैसे हम बाहर निकालेंगे मर्करी का लेवल उसी वक्त गिरने लग जाएगा। बट क्लिनिकल थर्मोमीटर में हम लोगों को जब अपना टेम्परेचर मेज़र करो हमें बाहर ही निकालना पड़ता है टेम्परेचर देखने के लिए। नाउ transfer of heat. Our next topic is transfer of heat. I hope you understood the laboratory thermometer. What is in the laboratory? There is something different in the laboratory and the clinical thermometer. So there is some difference between both. क्लिनिकल थर्मोमीटर मैं आपको बार बार रिपीट करती हूँ, क्लिनिकल थर्मोमीटर में जो है क्लिनिकल थर्मोमीटर में जो है वो जो मर्करी लेवल वो अपने आप नहीं गिरता है, बट जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर वो मर्करी लेवल खुद गिर जाता है, क्योंकि लेबोरेटरी थर्मोमीटर को हमें जो उसमें किंक अवेलेबल नहीं होता है, एंड लेबोरेटरी थर्मोमीटर की हमें रीडिंग मेज़र करते समय ही लेनी पड़ती है जब मर्करी थ्रेड जो है स्टीड हो जाए, रुक जाए। एंड जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है हमारा उसमें हम अब जब हम ना बॉडी टेम्परेचर मेज़र करते हैं तो हमें बाहर निकाल कर ही करनी पड़ती है। नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ ट्रांसफ़र ऑफ हीट। 4.4 Transfer of heat. You might have observed that a frying pan becomes hot when kept on a flame. It is because the heat passes from the flame to the utensils. आप लोगों ने ये भी ऑब्जर्व किया होगा कि जो फ्राइंग पैन है, जो फ्राई पैन है, जब हम उसे फ्लेम पे रखते हैं तो वो गर्म हो जाता है। ये क्यों होता है? क्योंकि जो हीट जो है वो पास करती है फ्लेम से यूटेंसिल तक। जो हीट है वो फ्लेम से यूटेंसिल तक पास करती है, इसीलिए जो है होता है। क्यों? आप लोगों ने ऑब्जर्व किया है जब हम लोग गैस पे फ्लेम पे फ्राइंग पैन रखते हैं तो वो गर्म हो जाता है, हॉट हो जाता है। तो वही ये क्यों होता है? क्योंकि जो हीट है वो फ्लेम से यूटेंसिल्स बर्तन तक पास होती है। When the pan is removed from the fire, जब हम पैन को जो है फायर से रिमूव करेंगे, it slowly cools down. ये जो धीरे से मतलब कि ये कूल हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, धीरे धीरे ये ठंडा हो जाएगा। Why does it cool down? अब ये ठंडा क्यों होगा? The heat is transferred from the pan to the surroundings. क्योंकि जो हीट थी पैन में, जो फ्लेम से पैन में हीट आई वो जो है सराउंडिंग्स में पास हो गई, वो सराउंडिंग में पास हो गई।
So you can understand that in both cases the heat flows from a hotter object to a colder object. तो आप इन दोनों केसेस में आप समझ चुके हैं कि जो हीट है वो हॉटर ऑब्जेक्ट से ठंडे ऑब्जेक्ट तक मूव हो जाती है, फ्लो हो जाती है. In fact in all cases heat flows from a hotter object to a colder object. जबकि जो सभी केसेस में जो है हीट जो है गर्म ऑब्जेक्ट से ठंडे ऑब्जेक्ट में ही जाती है. हाउ डज हीट फ्लो? लेट अस इन्वेस्टिगेट. अब हीट कैसे फ्लो करती है, हीट कैसे फ्लो करती है, अब चलिए इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन इन्वेस्टिगेट करते हैं. एक्टिविटी 4.6. देयर इज वन मोर एक्टिविटी हियर. एक्टिविटी 4.6. Take a rod or flat strip of a metal, say of aluminium or iron. अब आपको एक रॉड लेनी है और एक या फिर आपको एक फ्लैट स्ट्रिप लेनी है मेटल की, या फिर आपको एल्यूमिनियम या फिर आयरन की एक से लेनी है. क्या यहाँ आपको एक रॉड लेनी है मेटल की, या फिर आपको एक फ्लैट स्ट्रिप लेनी है मेटल की, एंड से ऑफ एल्यूमिनियम और आयरन लेना है. या तो आपको या तो आपको एक एल्यूमिनियम से लेनी है, या फिर आपको आयरन से लेनी है, या फिर आपको रॉड लेनी है मेटल की, या फ्लैट स्ट्रिप लेनी है. फिक्स अ फ्यू स्मॉल वैक्स पीसेस ऑन द रॉड. अब आपको कुछ जो है स्मॉल वैक्स पीसेस जो है रॉड पे, आपको रॉड पे जो कुछ वैक्स पीसेस रखने हैं, या जैसे सपोज करिए आप लोगों ने आयरन से ले लिया, आयरन रॉड ले ली, कुछ भी ले लिया, तो अब आप जो है उसमें आपको क्या करना है, उस पर आपको वैक्स के पीसेस लगाने हैं. दीज पीसेस शुड बी एट नियरली इक्वल डिस्टेंस. आपको ये ध्यान रखना है कि जो पीसेस आप लोगों ने रॉड पे लगाए हैं वो इक्वल डिस्टेंस पे होने चाहिए. फिगर 4.7 इज शोइंग यू. इस तरीके से जो आप लोग रॉड पे पीसेस रखोगे, वैक्स के जो आप पीस रखोगे वो इक्वल डिस्टेंस में होने चाहिए. नाउ नेक्स्ट, क्लैम्प द रॉड टू अ स्टैंड. अब जो रॉड आप लोगों ने लिए उसे एक स्टैंड पे अटका दीजिए. इफ़ यू डोंट फाइंड अ स्टैंड यू कैन पुट वन एंड ऑफ द रॉड इन बिटवीन ब्रेक्स. अगर आपको स्टैंड नहीं है आपके पास तो आप जो है रॉड को ब्रिक्स के बीच में भी रख सकते हो. नाउ हीट द अदर एंड ऑफ द रॉड एंड ऑब्जर्व. और उसके बाद फिर जो है आपको जो, जैसे कि आपको फिगर 4.7 में शो कर रहा है कि आपको जो है रॉड का जो दूसरा पार्ट है उसे जो है आपको हीट करना है. आफ्टर देन डू दीज पीसेस बिगिन टू फॉल. क्या जो आप लोगों ने जो वैक्स के ये पीसेस थे, ये वाले पीसेस थे जो, क्या ये गिरने लगे हैं? विच पीस फॉल्स फर्स्ट. कौन सा पीस पहले गिरेगा? डू यू थिंक दैट हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द एंड नियरेस्ट टू द फ्लेम टू द अदर एंड. क्या आपने ऑब्जर्व किया, क्या आपने सोचा कि जो हीट है वो एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंच गई है, ट्रांसफ़र हो गई है. द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज द कंडक्शन. देयर इज एन डेफिनेशन ऑफ कंडक्शन. The process by which the heat is transferred from the hotter end to the colder end of an object is known as conduction. This is very important. You have to learn this. I will give you important questions in finishing of this chapter. So conduction की definitions आपको exams में पूछी जा सकती है. Conduction is the process in which heat is transferred from the hotter object of a hotter end of to the other end. जो इसमें क्या होता है कि हॉटर एंड से जो कोल्डर एंड होता है एक ऑब्जेक्ट में, उसमें हॉटर एंड से कोल्डर एंड में हीट जाती है. नाउ इन सॉलिड्स जनरली दी हीट इज़ ट्रांसफर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन. सॉलिड में जो हीट है वो ज़्यादातर जो है कंडक्शन की मदद से ही ट्रांसफ़र होती है. डू ऑल सब्सटेंसेस कंडक्ट हीट ईजली. क्या जो सभी ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या अब हीट को ईजिली ट्रांसफ़र कर लेते? कभी सभी ऑब्जेक्ट्स में हीट जो है ईजिली कंडक्ट हो जाती है. यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द मेटेलिक पैन फॉर कुकिंग हैज़ अ प्लास्टिक और वुडन हेड. आपने ये ऑब्ज़र्व किया होगा कि जो मेटल के पैन होते हैं हमारे घर पे जो यूज़ किए जाते हैं यूटेंसिल्स, मेटल के जो यूटेंसिल्स होते हैं, मेटल के जो पैन्स होते हैं, उसमें जो उनका जो हैंडल होता है वो प्लास्टिक या फिर वुडन हैंडल होता है. यू ऑब्ज़र्व दैट नाउ कि जो घर में पैन्स वगैरह होते हैं उसका जो हैंडल होता है वो या तो प्लास्टिक का होता है या फिर वुडन का होता है. कैन यू लिफ्ट अ हॉट पैन बाय होल्डिंग इट फ्रॉम द हैंडल विदाउट गेटिंग हर्ट.
क्या पैन को आप उसी से होल्ड करके बिना उसके बिना हर्ट लिए क्या आप गरम पैन को लिफ्ट कर सकते हो? नाउ देयर इज़ वन मोर एक्टिविटी 4.7. लेट्स रीड इट. हीट वाटर इन अ स्मॉल पैन और अ बीकर. अब आपको जो वाटर को एक छोटे से पैन में या फिर एक बीकर में जो है गर्म करना है. कलेक्ट सम आर्टिकल्स सच एज अ स्टील स्पून, प्लास्टिक स्केल, पेंसिल और डिवाइडर. अब आपको कुछ आर्टिकल्स, कुछ चीज़ें लेनी है, जैसे कि स्टील स्पून हो गया, स्टील का स्पून हो गया, प्लास्टिक की स्केल हो गई, पेंसिल हो गई, डिवाइडर हो गया. आपको ऐसे कुछ आर्टिकल्स लेने हैं. डिप वन एंड ऑफ ईच ऑफ दीज आर्टिकल्स इन हॉट वाटर. अब इन सभी में से जो एक आर्टिकल का जो एक एंड है वो उसमें डिप करना हॉट वाटर में. वेट फॉर अ फ्यू minutes, touch the other and enter your observations in table 4.3. और कुछ मिनट्स के बाद वेट करने के बाद उसके जो है दूसरा एंड है जो आपने ऑब्जेक्ट जैसे सपोज कीजिए कि आप लोगों ने पैन में वाटर गर्म किया, हॉट किया. उसके बाद फिर आपने एक स्टील का स्पून लिया एंड स्टील के स्पून का एक एंड जो है आपने वाटर में डिप कर दिया. आफ्टर अ फ्यू मिनट्स वी टच द अदर एंड. क्या ऑब्जर्व करोगे आपने जब गर्म पानी में स्टील का स्पून रखने के बाद तो जब उसका दूसरा एंड पकड़ा जो कि पानी में भी नहीं था, तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे? अपनी जो ऑब्जर्वेशन जो आपने ऑब्जर्व किया वो उसको आपको टेबल 4.3 जैसे कि दी हुई है एक्टिविटी 4.7 में, इसमें जो है आपको फिल करना है जो भी आपने ऑब्जर्व किया. Now the material which allow heat to pass through them easily are conductors of heat. The material which allow heat to pass through them easily are conductors. Conductors of heat means वो मटेरियल जो कि हीट को अपने आप से ईजिली ट्रांसफ़र होने दे, उसे हम कंडक्टर कहते हैं हीट के. फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम, आयरन एंड कॉपर. जैसे कि एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर मींस कि मेटलिक चीज़ें जो हैं वो सभी हीट को ट्रांसफ़र करती हैं, वो कंडक्टर होती हैं हीट की. एंड नॉन मेटेलिक सपोज जस्ट लाइक अ pencil, wood is not the conductor of a heat, plastic is not the conductor of a heat, while the metals are the conductor of heat. तो वही conductor of heat वो है कि जिसमें जो है हीट जो है ईजिली ट्रांसफ़र हो जाए, ईजिली पास हो जाए. फॉर एग्जाम्पल हो गया the material which do not allow the heat to pass through them easily are poor conductors of heat such as plastic and wood. Poor conductors are known as the insulators. So there is two one is the conductor, second one is the insulator. Okay, so conductor में हीट जो है पास होती है, हीट जो ऑब्जेक्ट में पास होती है, इनका एग्जांपल हो गया मेटल्स जस्ट लाइक एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर. एंड जो इंसुलेटर है उनमें हीट पास नहीं हो पाती, वो पुअर कंडक्टर होते हैं हीट के, जस्ट लाइक प्लास्टिक एंड वुड. Insulators are those which do not allow to pass heat through them easily. They are the poor conductor of heat such as plastic, wood. But while conductors are the materials which allow heat to pass through them easily are the conductors of heat. Okay, so I hope you understood. This is very important. Conductors एंड इंसुलेटर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें आपका डिफरेंशिएट भी आ सकता है आपके एग्ज़ाम्स में, जो अभी आपके पीटीज होंगे तो उसमें आपका जो है डिफरेंशिएट भी आ सकता है. द वाटर एंड द एयर आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट. जो वाटर और एयर है वो जो है हीट के पुअर कंडक्टर्स है. देन हाउ डज द हीट ट्रांसफ़र टेक प्लेस इन दीज सब्सटेंसेस, लेट अस फाइंड आउट. तो ये देखिए जैसे कि वाटर एंड एयर जो है हीट के बैड कंडक्टर्स, पुअर कंडक्टर्स हैं, इंसुलेटर्स हैं. तो इनमें हीट जो है कैसे ट्रांसफ़र होगी, देखिए इन सब्सटेंसेस में हीट कैसे ट्रांसफ़र होगी. चलिए अब इसके फाउंड आउट करते हैं. नाउ देयर इज एक्टिविटी 4.8, वन मोर एक्टिविटी, लेट्स रीड इट. टेक अ राउंड बॉटम फ्लास्क. अब आपको एक राउंड बॉटम फ्लास्क लेना है. इफ़ फ्लास्क इज़ नॉट अवेलेबल अ बीकर कैन बी यूज. अगर आपके पास फ्लास्क नहीं है तो आप एक बीकर भी यूज़ कर सकते हो. फिल इट 2/3 विद वाटर. अब इसको 2/3 पार्ट जो वाटर के साथ फिल कर देना है. प्लेस इट ऑन अ ट्राईपॉड. इसे जो ट्राईपॉड में रखना है.
or make some arrangement to place the flask in such a way that you can heat it by placing a candle below it. अब आपको जो है इसे इस तरीके से प्लेस करना है, इस तरीके से प्लेस करना है कि जिस अगर आप इसमें बर्नर या कैंडल कुछ भी लगाओ तो उसको हीट मिल सके, उसको पुट कर सके. सपोज दिस इज़ द कंटेनर, तो इसको आप पुट करिए, इस तरीके से पुट करिए कि जो नीचे कैंडल से उसको हीट मिल सके. Wait till the water in the flask is still. Place a crystal of potassium permanganate at the bottom of the flask, gently using a straw. अब आपको जो है कि पोटेशियम परमैग्नेट का जो क्रिस्टल है, एक क्रिस्टल आपको रखना है फ्लास्क के सबसे नीचे. आपको एक क्रिस्टल रखना है पोटेशियम परमैग्नेट का. किसका यूज़ करके? स्ट्रॉ का यूज़ करके आपको पोटेशियम परमैग्नेट का एक क्रिस्टल रखना है फ्लास्क के बॉटम में. नाउ हीट द वाटर बाय प्लेसिंग द कैंडल जस्ट बिलो द क्रिस्टल. अब जो है वाटर को हीट करना है, उसके नीचे जस्ट कैंडल रख के, उसके नीचे कैंडल रख के वाटर को हीट करना है. Write your observations in your notebook and also draw a picture of what you observe. अब आपको जो है अपनी ऑब्जर्वेशंस अपनी नोटबुक पे रखनी है और आपने जो भी ऑब्जर्व किया उसका एक डायग्राम भी बनाना है. When water is heated, the water near the flame gets hot. जब वाटर जो है गर्म होता है तो जो वाटर फ्लेम के आसपास होता है वो भी गर्म हो जाता है. हॉट वाटर राइजेस अप. जो वाटर हॉट वाटर गर्म पानी जो होता है वो राइज अप होता है. द कोल्ड वाटर फ्रॉम द साइड्स मूव डाउन towards the source of it. This water also gets hot and rises. जो cold water होता है वो नीचे की तरफ हीट के सोर्स ऑफ हीट के सोर्स की तरफ मूव करता है. This water also gets hot and rises. और ये वाटर उसके बाद फिर जो कोल्ड वाटर है वो जो है नीचे की तरफ मूव करेगा, उसके बाद वो भी गर्म होगा एंड वो भी राइज करेगा. Just as you seeing in the figure 4.9 there is given. And water from the sides moves down. दिस प्रोसेस कंटिन्यूज टिल द होल वाटर गेट्स हीटेड. ये प्रोसेस तब तक चलती रहती है जब तक पूरा पानी जो है गर्म नहीं हो जाता है. दिस मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र इज़ नोन एज कन्वेक्शन. इस मोड हीट के इस मोड को हीट को ट्रांसफ़र करने के लिए इस मोड को हम क्या कहते हैं? कन्वेक्शन कहते हैं. हाउ डज द हीट ट्रैवल इन एयर. अब हीट जो एयर में कैसे ट्रैवल करती है? इन विच डायरेक्शन डज द स्मोक गो. अब किस डायरेक्शन में स्मोक जो है अब किस डायरेक्शन में जाता है? The air near the heat source gets hot and rises. जो एयर होती है हीट सोर्स के पास जो एयर होती है वो गर्म हो जाती है और उसके बाद राइज होती है. द एयर फ्रॉम द साइड्स कम्स इन टू टेक इट्स प्लेस. जो साइड आसपास में जो एयर होती है वो आती है, एक प्लेस लेने के लिए आती है. इन दिस वे द एयर गेट्स हीटेड. इसी तरीके से एयर भी हीट होती है. द फॉलोइंग एक्टिविटी कन्फर्म्स दिस आइडिया. और ये एक्टिविटी जो आपको इस आइडिया को कन्फर्म कर देगी. Now in this part we will keep this chapter till here and we will start from the activity 4.9 in the next part. So I hope you understood it very well, and if anyone has any type of doubt you can comment in the comment box. I will clear you in the next part. So do like, share and subscribe my channel and turn on the bell icon to get the notification of the other chapters and parts of those chapters. So thank you children. Bye. Prepare well for your exams. Bye children.